हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने अलाउद्दीन खलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को देख लिया था एंड क्योंकि एक नई टॉपिक स्टार्ट हो रही थी तो वी हैव अनदर वीडियो फॉर दिस वन। अदरवाइज ये लास्ट टॉपिक में वी कुड हैव एडेड, बट ठीक है। चलो, तो फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। Abundance of wealth, which had been diagnosed by Alauddin Khalji's advisors to be the fourth cause of revolt, was tackled by the Sultan in a very comprehensive way. He could understand better the role of money in determining the fate or fortunes of the kingdom. In order to eliminate this source of trouble, he felt tempted and took vigorous steps to lay his hands on the property of the nobility and well-to-do citizens. In a more sophisticated language, the Sultan adopted a new fiscal policy and introduced important changes in the revenue system of the state. He was in fact the first among the sultans of Delhi who took interest in regulating the financial affairs as a matter of state policy. By a stroke of pen, Alauddin Khalji abolished the Jamindari system in the crown lands, and by a thrust of his sword, he confiscated the Jagirs and estates, stopped the practice of issuing grants of land in lieu of state services, and abolished the pension and endowments beyond a few thousand tankas. तो क्या हो गया यहाँ पर? अब हम लोग देख सकते हैं कि चौथा जो कारण था, जो अलाउद्दीन के कॉन्फिडेंशियल लोगों ने बताया कि रिवोल्ट का क्या है, तो वेल्थ है, वो है ना। तो चौथा कारण वेल्थ था। वेल्थ जो अबंडेंट हो रहा था नोबेल्स के पास, इसके पास, उसके पास, तब वो ऐसा कुछ सोच पा रहे थे। और अलाउद्दीन से बेहतर कौन ही जान सकता है कि वेल्थ से किंगडम्स बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देवगिरी से लूटे हुए वेल्थ से ही खुद को सुल्तान बनाया। तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और इन्होंने विग्रस स्टेप्स लिया ताकि नोबेलिटी के हाथों से या फिर जो अमीर सिटीजन्स हैं उनके आई एम सो सॉरी, उनके हाथों से जो है वेल्थ ले लिया जाए। इससे ज़्यादा अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे तो अलाउद्दीन ने जो, मतलब प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहूँ तो अलाउद्दीन ने एक नई फिस्कल पॉलिसी इस्टेब्लिश की, है ना। मनी से रिलेटेड एक नई पॉलिसी लाए, रिवेन्यू सिस्टम में इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आए, और ये पहले सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने जो है स्टेट पॉलिसी में जो है फाइनेंशियल अफेयर्स को भी इंक्लूड किया। मतलब ये भी स्टेट का काम है कि वो फाइनेंशियल अफेयर्स को भी क्या करें, रेगुलेट करें। और एक पेन के स्ट्रोक से अलाउद्दीन ने जो है ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। क्राउन लैंड्स जो है वहाँ पर जो है पूरे तलवार के जोशों में जो है वो जागीर छीन ली गई लोगों से। लोगों को लैंड ग्रांट मिलना बंद हो गया, मतलब लैंड अब नहीं दिया जाता था, और कैश में पेमेंट्स करने की कोशिश की गई। पेंशन और इडोमेंट्स, ये भी तो एक्यूमुलेशन ही होगा वेल्थ का, तो ये भी जो है कुछ फ्यू थाउजेंड टंकास तक ही रह गया, पहले के जितना अब नहीं मिलता था। अभी यहाँ पर then the next, of course there are instances to prove that the system of granting land in lieu of service or inam could not be given up by Alauddin's government altogether. A probability has also been expressed that all assignments were not confiscated but their management was taken over by the government. There are, however, reasons to believe that Alauddin Khalji did apply the Morton fork to extract surplus money from his subject on one pretext or the other. As mentioned earlier, soon after consolidating his position, Sultan laid his hand on the ex-Jalali nobles and deprived them of their land and riches on the excuse that they were turncoats and hence untrustworthy. A couple of years later, the practice was made universal. Burney's observations on this issue, though full of exaggeration, reveal the truth that Alauddin Khalji took drastic steps to cripple the power of nobility and strengthen the hand of central government. But for personal factor which lay behind his medieval outlook, while talking of the state, the measure adopted by him seemed
to be progressive, the success of which could have ultimately led to the evolution of strong and stable central government। तो क्या कहा जा रहा है कि ये ऑफ कोर्स जो है ये इनाम देना या लैंड वाला जो प्रैक्टिस है ग्रांट करने का, ये ऑल टुगेदर तो बंद नहीं हुआ है ना। कहीं कहीं पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता था वहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर ये भी प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे असाइनमेंट, सारे के सारे लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट नहीं किए थे। पर हाँ, ये भले हो गया था कि लोगों के जिनके पास लैंड भी था, अल्टीमेट मैनेजमेंट जो है उसका गवर्नमेंट के पास ही था। अलाउद्दीन ने जो है पूरी कोशिश की कि वो किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से लोगों के हाथ में जो एक्सेस पैसा है, एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है, उसको जो है वो निकाल पाए। और जैसा कि पहले भी पता चला हमें कि मतलब सुल्तान जो है उन्होंने सबसे पहले, जैसे वो सुल्तान बने तो अलाउद्दीन जैसे ही सुल्तान बने उन्होंने सबसे पहले एक्स जलाली नोबेल्स को हटा दिया, उनसे उनका लैंड और रिचेस छीन लिया कि ये तो पुराने जलाली नोबेल्स हैं, तो ये अनट्रस्टवर्दी है। लेकिन इसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने ये प्रैक्टिस यूनिवर्सल कर दिया। किसी भी नोबेल को जो है लैंड और रिचेस एक्यूमुलेट करने का तो मौका नहीं दिया गया। बर्नी ऑल्दो बहुत एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन इतना तो आइडिया लग जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो बहुत ही ड्रास्टिक बड़े स्टेप्स लिए ताकि नोबेलिटी के पावर को कम किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सुल्तान के पावर बढ़ सके। पर्सनल फैक्टर इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो मेडिवल एरा से बहुत आगे की सोच का था, है ना। ये मेजर जो है ये काफ़ी प्रोग्रेसिव था और अगर ये कंटिन्यू होता तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं उनको वो जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो पाते। अलाउद्दीन खिलजी डिड एब्सोल्युटली नथिंग टू क्रिएट इवन अ सेम्बलेंस of central authority apart from the person of the sultan brought into being by his apart from the person of the sultan himself, which could hold intact such a mighty state that he had brought into being by his military prowess and forceful character. After having dealt with the nobility and other grandees of the state, Alauddin Khilji turned his attention towards the feudatory Hindu chiefs called Rayas, Rawat and Thakurs, and the hereditary Hindu landlords referred to as by the Barni as the Khuds, Mukaddams and Chaudharies. तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उन्होंने कुछ सेंट्रल अथॉरिटी टाइप क्रिएट नहीं किया था। उनकी सारी की सारी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो एक ही इंसान में थी जो कि अलाउद्दीन खुद थे, और वो उन्होंने अपने पावर, अपने माइट से स्टोर किया था और अपने फोर्सफुल कैरेक्टर से स्टोर किया था। लेकिन हाँ, नोबेलिटी को वो चेक करने में सक्सेसफुल रहे, और नोबेलिटी को जब चेक कर लिया तो अपना अटेंशन इन्होंने फ्यूडेटरी चीफ, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जब लैंड हम लोग दे रहे होते हैं तो कई बार वो क्या हो जाता है कि वहाँ के वो लोग जो हैं वो एक्चुअल ओनर्स बन जाते हैं लैंड के, फिर वो वसूल करके जो है फाइनल गवर्नमेंट को देते हैं। तो वो काइंड ऑफ मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं। और विल अंडरस्टैंड फ्यूडलिज्म इन डिटेल ऑल्सो इफ़ यू वांट। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने फ्यूडेटरी हिंदू चीफ, रायस, रावत, ठाकुर और हेरिडिटरी हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो है उनको जो है जिनको कि बरनी कहते हैं कि जिनको कि बरनी खुद मुकद्दम्स या फिर चौधरीज कहते हैं, इनके तरफ अपना ध्यान किया। Bulk of cultivable land under the Sultan of Delhi was held by Hindu peasant proprietors, Bahaldars of Barni, in the hereditary right according to the ancient tradition. So also was the case with semi-official rural leaders and headmen of the village, Khuds, Mukaddam, Chaudharies, who acted as landlords and intermediaries for collection of land revenue and other state demands from the village folk. तो मैंने अभी जस्ट यही बताया आपको कि ये मिडिल मैन की तरह या फिर इंटरमीडियरीज की तरह काम करते थे। तो ये टैक्स कलेक्ट करते थे और फाइनली अलाउद्दीन या फिर सुल्तान को जो भी है उनको दिया करते थे या सेंट्रल अथॉरिटी को। इसमें क्या होता था ना कि ये बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते थे, कई बार ऑपरेस करने लग जाते थे। सुल्तान को जितना चाहिए, सपोज सुल्तान को 10 रुपये चाहिए किसी एक पार्ट ऑफ लैंड से, तो ये उनसे 20 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं, 10 रुपये ये खुद रख रहे हैं, 10 रुपये सुल्तान को दे रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि लोग बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। Alauddin realized the limitation of his power. He was a Muslim ruler of a non-Muslim land and he knew that he could only govern on principles acceptable to Hindu masses. Therefore, the Sultan had to leave the hereditary Hindu dignitaries and their people to their traditional way of life.
Khuds, Mukaddams and Chaudhries had however enriched themselves at the cost of peasant as well as the state. They charged heavy duties in state demand and their collection fees from the former but paid very little to the exchequer. They embezzled the government money, fleeced the tillers of the soil and enjoyed luxurious life, paid no heed to the revenue officials. Alauddin Khalji adopted a strong policy to remedy the solution. तो क्या कहा जा रहा है, अलाउद्दीन को ये पता था कि वो एक मुसलमान है और वो रूल किसको कर रहे हैं, नॉन मुसलमान को। मतलब इंडिया में मैक्सिमम लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम थे, तो उनको पता था कि अगर हिंदूज को रूल करना है तो उनके तौर तरीकों में बदलाव लाना बेवकूफ़ी होगी। तो उन्होंने इसमें कोई चेंजेस इनिशियली वो लेकर नहीं आए, उन्होंने चलने दिया। पर खुद मुकद्दम चौधरी ये क्या कर रहे थे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया तो वही करते थे ये। जैसे कि इनको अगर 20 रुपये कलेक्ट करना है तो ये क्या करते थे, ये 40 का टैक्स लगा दिया, 50 का टैक्स लगा दिया, 20 दे दिया और 30 अपने पास रख लिया। और इसमें ये जो है ये अमीर से अमीर होते जा रहे थे और फार्मर जो है वो गरीब से गरीब होते जा रहे थे, बहुत सफ़र कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खलजी ने जो है एक कुछ कोशिशें की इस सिचुएशन को रिमेडी करने के लिए। ही इशूड 2 regulations to settle state demand. The first regulation, Zabta, adopted measurement of cultivable land as the principle for determining the land revenue. Biswa was declared to be the standard unit of measurement. I think this should be taken into account. आपको ये ध्यान देना चाहिए। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ज़ब्ता एंड बिस्वा। तो पहला फर्स्ट रेगुलेशन जो है अलाउद्दीन ने अडॉप्ट किया क्या कि वो पहले जो है मेज़र करेंगे कल्टिवेबल लैंड को, लैंड, और उस अकॉर्डिंग वो लैंड रेवेन्यू डिसाइड करेंगे। मतलब अच्छा लैंड है तो वहाँ का लैंड रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर इतना फर्टाइल लैंड नहीं है तो लैंड रेवेन्यू कम होगा। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आज हम लोग मीटर किलोमीटर करके मेजर कर रहे हैं, उस समय ये जो है बिस्वा करके मेजर करते थे। बिस्वा जो है स्टैंडर्ड यूनिट था मेजरमेंट का। Government demand was fixed to half of the produce, which was to be realized without any diminution, and this rule was to apply to khutas, balahars विदाउट द स्लाइटेस्ट डिस्टिंक्शन। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, कहा कि मुझे तो आधा प्रोड्यूस चाहिए और बिना किसी चेंज के, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये जो है लैंड लॉर्ड और कल्टीवेटर, फार्मर और ज़मींदार पे एक तरीके से लगेगा, किसी को भी थोड़ा भी रिलीफ नहीं मिलना है इस मैटर पे। सेकेंड रेगुलेशन रिलेटेड टू अ लेवी ऑन द कैटल, अ टैक्स फॉर पैस्चुरेज एट द फिक्स्ड रेट was levied and demanded for every inhabited house so that no animal, however wretched, could escape the tax. It was made applicable to the inhabitants, rich or poor, high or low. तो क्या हुआ, एक तो पहले इन लोगों पर टैक्स लगाया कि मतलब जो भी कल्टीवेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ों पर, तो कितना था टैक्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाफ जो है वो स्टेट का रेवेन्यू था, और ये जो है लैंडलॉर्ड पर और कल्टीवेटर पर बराबरी से लगता था। दूसरा टैक्स जो है उसको एक्चुअली में चराई भी कहा जाता है, तो वो एक्चुअली में कैटल्स के लिए था, जो कैटल्स जो फीड करेंगे ग्राउंड पर, तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। इसको चराई भी कहा जाता था, जो जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है या मे बी आगे मेंशन्ड होगा। तो ये जो है ये एनिमल्स पर लगता था फॉर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉडर टू देम, वो जो लैंड पर ही तो वो फीड कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। और ये भी रिच पुअर हाई लो सब पर लगता था। Alauddin Khalji was the first Muslim ruler of Delhi who introduced measurement of land on the basis of assessment of the state demand, one of the well-established ancient Indian customs. Of course, the demand for half the produce of land revenue was excessive. Nevertheless, it was in accordance with the general nature of Alauddin Khalji. The state deprived the khuds of the special privileges and abolished their khuti, the collection charges. They were also put under obligation to pay land revenue and other cesses at the same rate at which the other peasants were taxed. Barney's account on this point is not clear, but it so appears that the khuds were expected to pay revenue on the land under their personal cultivation only and not on the behalf of or the other peasants.
तो क्या कहा जा रहा है, अलाउद्दीन जो है वो पहले मुस्लिम रूलर थे जो लैंड को पहले एसेस कर रहे थे और तब टैक्स डिमांड कर रहे थे। बट ये एंशिएंट इंडियन कस्टम में पहले से एस्टैब्लिश था, बट पहले मुस्लिम रूलर अलाउद्दीन ही थे जो एसेस करके तब टैक्स ले रहे थे। टैक्स जो है वो हाफ था, हाफ काफ़ी ज़्यादा हो गया। आप सोचो, आप अर्न कर रहे हो 500 और आपसे कोई 250 पर मंथ टैक्स ले रहा है, तो वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा है। बट अलाउद्दीन खिलजी जितने ऑटोक्रेट थे, तो ये उनका जनरल नेचर था कि वो किसी को भी पावर एक्यूमुलेट करने ही नहीं देना चाहते थे। और जो मतलब खुद थे, उनको उनका स्पेशल प्रिविलेजेस उनसे छीन लिया गया और उनके जो है खुदी को जो है एबॉलिश कर दिया गया, उनके कलेक्शन चार्जेस को। और फिर उनको भी ऑब्लिगेशन में डाल दिया गया कि आपको भी लैंड रेवेन्यू देना है और टैक्सेस देना है सेम रेट पे जिसमें पीजेंट से आप ले करके हमें दे रहे हो, उतना ही आपको भी देना है। बर्नी प्रॉपरली तो नहीं बताते हैं इस मैटर पर, बट ऐसा अपीयर होता है कि खुद जो है वो लैंड रेवेन्यू जो है उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो लैंड रेवेन्यू जो है वो अपने पर्सनल कल्टीवेशन का देंगे और दूसरे पीजेंट्स के बिहाफ का नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनका जो लैंड रेवेन्यू उनको पे करना है वो भी दूसरे पीजेंट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। If this is correct, then we can conclude that Alauddin Khilji had abolished zamindari or intermediary status of khuds, muqaddams and chaudhries and struck a serious blow to traditional Hindu landed aristocracy. Thereafter, they might have continued to hold their hereditary family titles, but we are not sure if they also continued to perform their old function of revenue collection without the receipt of their collection fees. The conclusion seems to be करेक्ट इन लाइट ऑफ मीनिंगफुल स्टेटमेंट मेड बाय बर्नी इन कोर्स ऑफ नरेटिव। तो क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो इनको जमींदार्स को या फिर जो मिडिल मैन इंटरमीडिएरीज थे, खुद मुकद्दम और चौधरी, इनको कलेक्शन टैक्स ही देना बंद कर दिया। ये तो आपका काम कर रहे हैं, ये आपके बदले में कलेक्ट कर रहे हैं, बट इनको देना ही बंद कर दिया कलेक्शन चार्ज। इस वजह से माना जाता है कि इन्होंने, और फिर इनसे एक्सपेक्टेड था कि ये बस अपना दें, ये दूसरे लोगों का नहीं दें, पीजेंट्स अपना खुद देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं अलाउद्दीन ने जमींदारी सिस्टम को जो है एबॉलिश कर दिया। और बर्नी कहते हैं कुछ जिससे हम इस नरेटिव तक पहुंचते हैं। द सेम रूल्स फॉर कलेक्शन ऑफ ट्रिब्यूट अप्लाइड टू ऑल अलाइक एंड पीपल वेर ब्रॉट टू सच अ स्टेट ऑफ ओबीडियंस दैट वन रेवेन्यू ऑफिसर वुड स्ट्रिंग 20 खुद्स, मुकद्दम्स और चौधरीज टुगेदर बाय द नेक एंड एनफोर्स पेमेंट बाय ब्लोज। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सेम रूल था टैक्सेस पे करने का, हर किसी के लिए एक बराबर रूल। और खुद मुकद्दम या चौधरी भी जो है तो उनसे भी एक ही रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्ट कर रहे थे वही रेवेन्यू ऑफिसर जो बाकी लोगों से कलेक्ट कर रहे थे। और अगर खुद मुकद्दम या चौधरीज भी नहीं दे पाते थे तो उन पर भी जो है ना उनके साथ भी फोर्सफुल ट्रीटमेंट किया जाता था कि वो टैक्स पे करें। Alauddin Khilji had a vast revenue establishment. It is probable that some of the old Khut, Mukaddam and Chaudhries were enrolled as revenue collectors on the new terms and remuneration offered by the state. Alauddin enforced strict discipline among the revenue personnel, collector, clerks and other officers employed in revenue matters who took bribes and acted dishonestly were dismissed. तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उन्होंने वास्ट रेवेन्यू एस्टैब्लिशमेंट रखा अपना। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पुराने खुद मुकद्दम या चौधरी को वापस से उन्होंने अपने शर्तों पर काम करवाया होगा रेवेन्यू कलेक्टर का भी। अलाउद्दीन जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उन्होंने रखा रेवेन्यू पर्सनल या फिर कलेक्टर्स के बीच में। बर्नी कहते हैं इसी मैटर पे कि जो डिसऑनेस्टी करते थे उनके साथ तो बहुत खराब ट्रीटमेंट होता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर वॉज नो चांस ऑफ अ सिंगल टंका बीइंग टेकन डिसऑनेस्टली और एज ब्राइबरी फ्रॉम एनी हिंदू और मुसलमान। The revenue collector and officers were so coerced and checked that for 500 or 1000 tanka they were imprisoned and kept in chains for years. Of times of fiscal officers fell into prison and had to endure blows and stripes. तो बर्नी कहते क्या है कि एक भी सिंगल टंका जो है किसी से भी गलत तरीके से नहीं लिया जा सकता था, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, घूस नहीं लिया जा सकता था। अलाउद्दीन जो है उन्होंने इतना ज़्यादा चेक करके रखा था, इतना फोर्सफुल कंट्रोल के अंदर रखा हुआ था कलेक्टर्स को कि अगर वो 500 या 1000 टंका भी इधर उधर करते थे तो उनको क्या कर दिया जाता था, सालों साल तक जंजीरों में जकड़ के कोड़े मरवाए जाते थे। तो सच वॉज द थिंग। तो ऐसा डर पैदा कर दिया गया था जिस वजह से जो है
इन्होंने कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं किया. सच बीइंग द केस, बर्नीज ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट दैट men looked upon revenue officer as something worse than fever. Clerkship was a great crime and no man would give his daughter to a clerk. तो बर्नी कहते हैं कि लोग जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को फीवर से भी ज़्यादा खतरनाक समझते थे, क्लर्कशिप को एक क्राइम माना करते थे, और कोई भी जो है एक क्लर्क से अपनी बेटी की शादी नहीं करता था. We need not attach much significance to those statements of Barni which impart a communal touch to the fiscal and revenue reforms of Alauddin Khalji. He enforced these measures over his subject irrespective of whether they were Hindu or Muslim. It's just a coincidence that it were most of the Hindus who were affected by the revenue policy. तो एक्चुअली में इसका कोई कम्युनल टच नहीं था. बर्नी ने थोड़ा कम्युनल टच देने की कोशिश की है. बर्नी थोड़े कम्युनल राइटर हैं, जैसा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा भी है इसी बुक के. तो ही इज़ अ बिट ऑफ कम्युनल राइटर, तो वो थोड़ा हिंदू मुस्लिम करेंगे. लेकिन एक्चुअली में अलाउद्दीन खलजी ने जो है ये मेज़र को हिंदू और मुस्लिम पर अलाइक ही लगाया था. वो अलग बात है कि बहुत सारे हिंदूज को इससे एडवर्सली अफेक्ट हो गए थे वो, क्योंकि वही जमींदार थे ना पहले पुराने सिस्टम में, तो वही रेगुलेट कर रहे थे, तो उनको इफेक्ट हुआ एडवर्सली. बट एक्चुअली लगाया ये सब पर बराबरी से गया था. इसके बाद एक टॉपिक है प्राइस कंट्रोल एंड मार्केट रेगुलेशन, दैट इज होल अ न्यू टॉपिक. सो वी विल डू दैट इन अनदर क्लास. हाँ, we'll do that in another class. Thank you so much. Thank you for watching.